Hello students, hope you all are well and fine. I am Rajeshwari ma'am, your English teacher, welcomes you to the English class. My dear students, in our previous class we have completed up to go on shabbing means speak no more, ordered the Sultan. Up to this we have completed. In this class we are moving ahead. So the Sultan is very angry at this moment because the barber is going on talking long stories. He is narrating the stories only and not doing his piece of work given to him. So all the patience that is in the king have been exhausted. अब की बार राजा के अंदर जितना धैर्य था, सहन करने की शक्ति थी, वो सब गए. अब देखो क्या हो रही है. Be patient, said the barber. Perhaps you have not considered well that what you were going to do. I wish you would tell me what is the matter of great importance is all about, and then I will give you my opinion on it. As the king told that in the afternoon I have to go for a great important work, and now the barber is telling the king that now tell me what is the matter of great important, what is the greatest important work that you have. He is asking to the king. So if you tell me what is the matter of great important, I will give you my opinion on it, and if you tell me about the work, I will give you my opinion. So the barber is going to put his opinions in front of the king. ठीक है, राजा के सामने राजा को ये बोल रहा है कि आपने मुझे अच्छे से नहीं समझा है, मेरे पास भी वैसे बहुत सारे तरीके हैं. अगर आप मुझे वो क्या महत्वपूर्ण काम क्या है उसके बारे में अगर बोलोगे तो मैं अपना व्यू आपको दूंगा. Finishing shaving at once, the Sultan exclaimed, but instead of doing this, the barber left the Sultan half-shaved to go and see what time it was. So एक बार ही उसने फिर से शेविंग किया. अब राजा exclaimed is a new word to you. Exclaimed means पुटिंग योर ओपिनियन. राजा ने बोला कि एक ही बार तुमने मुझे अभी सेविंग किया है और तुम चले गए क्या करने के लिए, टाइम देखने के लिए. माई पेशेंस इज एग्जिस्टेड, द सुल्तान क्राइड. अब की बार सुल्तान चिल्लाने लगे कि अब तो सब कुछ बहुत ही बुरा हो रहा है मेरे संग. ठीक है, क्योंकि ही वॉज हाफ सेव्ड, ही कैन गो आउटसाइड इन दिस हाफ सेव्ड हेड. यू नो, be calm, my master, and you shall be saved in a moment. So now at this time barber is telling that be calm. Calm means शांत हो जाइए महाराज, and कुछ ही देर में मैं आपको सेविंग कर दूंगा. कौन बोल रहे हैं? The barber. And saying this he continued saving the sultan. वो सुल्तान को सेविंग करने लगा. ठीक है, but while he was doing this he could not help talking. ये सब जब करते करते उसने देखा कि कोई बातचीत नहीं हो पा रही है. इफ़ यू कुड इन्फॉर्म मी व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट अफेयर इज़, आई वुड गिव मोर एडवाइस. ठीक है, अगर आप मुझे बताओगे कि वो इम्पॉर्टेंट काम क्या है तो मैं आपको मेरा एडवाइस दूंगा. विच यू माइट फाइंड यूज़फुल, जो कि आपके लिए हो सकता है बहुत ही यूज़फुल साबित हो. The Sultan was completely fed up and by now and decided to satisfy the barber. अब की बार सुल्तान भी बहुत थक चुके हैं. उन्होंने सारे पेशेंस अपना लूज कर दिया है. जितने भी उनके अंदर धैर्य था वो सब गया, क्योंकि बार्बर के साथ बहस करते करते, बार्बर को बोलते बोलते अभी वो इस हाल में है कि बार्बर ने उनको हाफ सेव किया हुआ है और इस समय वो बाहर भी नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि उनको अभी हाफ सेव्ड कोई अगर देखेगा तो हंस पड़ेगा, है ना.
अब क्या हुआ, राजा भी बार्बर के मुट्ठी में आ गए और बोलने लगे। अब उसको उसकी जो डिमांड्स है उसको फुलफ़िल करने लगे। राजा भी अभी बार्बर के बात को मानने लगे क्योंकि कोई भी कीमत पर उनको अपना सिर को सेविंग करना था, ठीक है, अपना हेड को सेविंग करना था। He told him that he was giving a feast to some friends at the noon, which was why he was in a hurry to leave. उनको दोपहर में अपने दोस्तों को एक पार्टी देनी है, सो इसीलिए वो जल्दबाजी में है। When the barber had the Sultan mentioned that a feast, he exclaimed. अच्छा, फीस्ट के बारे में बोल रहे हो? That reminds me, yesterday I invited 4 or 5 friends to come to my house today. अच्छा, कल भी मैंने अपने 4 दोस्तों को बुलाया था और इसके बारे में तो एकदम मैं भूल गया हूँ। आज मैंने उनको आने के लिए बोल दिया है, but I had quite forgotten it and have not made any preparation for them. देखो देखो, ये क्या बात हो गई, फीस्ट के बारे में बोल रहे हो महाराज? हाँ, मैंने भी मेरे अपने 4 दोस्तों को बुलाया है लेकिन मैं तो एकदम भूल चुका हूँ। सो प्लीज़ महाराज, अब मुझे कुछ बताइए, मैं क्या करूँ? एंड हैव नॉट मेड एनी प्रिपरेशन फॉर इट। मैं फीस्ट के बारे में कोई प्रिपरेशन नहीं किया हूँ। द सुल्तान वाज एट द मर्सी ऑफ द बार्बर। अब सुल्तान जो कि बार्बर के दया में चल रहे थे, बार्बर के दया के पात्र थे, वॉज रेडी टू डू एनीथिंग फॉर द रिड ऑफ हिम। अब उससे छुटकारा पाने के लिए वो अब कुछ भी करने को तैयार थे। कौन तैयार थे? किंग तैयार थे। क्यों? उनके साथ क्या आफत थी कि बार्बर ने उनको हाफ सेव्ड कर रखा था, ठीक है। बी क्विक एंड फिनिश योर वर्क। जल्दी जल्दी से अपना काम निपटाओ। द सुल्तान रिप्लाइड, एंड यू शैल हैव ऑल द फूड दैट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर मी टुडे। आपको भी मेरे लिए, जो मेरे फीस्ट के लिए जो बनाए गए खाने हैं उनमें से कुछ कुछ आपको दे दिए जाएंगे। प्लीज़ शो मी द फूड एंड सो दैट आई मे जज इफ इट इज़ इनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स और नॉट। ज़रा अपना बनाया हुआ खाना को मुझे दिखाओ कि मैं भी देख लूँ कि मेरे 5 दोस्तों के लिए जो भी आप देने के लिए प्रस्तुत किए हो, तय किए हो, क्या वो उतना काफ़ी है मेरे लिए, मेरे दोस्तों के लिए। आई हैव इनफ फूड फॉर यू, द सुल्तान एक्सक्लेम। राजा बोल रहे हैं कि मेरे पास पर्याप्त खाना बना हुआ है। बट ही ऑर्डर्ड दैट ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर हिज फीस्ट बी बॉट इन। लेकिन अब की बार बोल रहा है कि जितने सारे खाने बनाए गए हैं आपके फीस्ट के लिए, वो सब लाके मेरे सामने रखो। द बार्बर लुक्ड ओवर द फूड एंड सेड। फिर राजा को वैसे ही करना पड़ा क्योंकि अब उनके पास कोई दूसरा चारा ही नहीं था उससे छुटकारा पाने के लिए, ठीक है। सो द बार्बर लुक्ड ओवर द फूड एंड सेड। बार्बर ने फूड की तरफ देखा और बोला, दिस इज़ वेरी गुड बट आई शैल वांट सम फ्रूट्स फॉर द डेजर्ट ऑल्सो। लेकिन महाराज ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे तो कुछ फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स की ज़रूरत है डेजर्ट के लिए, ठीक है। सो द सुल्तान इन डेस्परेशन। अब की बार सुल्तान एकदम डेस्परेट हो चुके हैं। डेस्परेट का मीनिंग होता है बेटा कि कोई काम करने से एकदम जो निराश हो जाते हैं, ठीक है, निराश हो जाना, होपलेस हो चुके हैं वे। तो होपलेस होकर वो बोल रहे हैं, सिंस हिज हेड वॉज हाफ सेव्ड ऑर्डर दैट द फ्रूट शुड बी ऑल्सो ब्रॉट इन। उन्होंने फिर से बताया कि चलो ये जितने फ्रूट्स का भी बंदोबस्त की गई है वो सब भी ले आओ। द बार्बर लेफ्ट ऑफ सेविंग द सुल्तान, ठीक है। बार्बर ने क्या किया, इतना करने के बाद उन्होंने सुल्तान को सेविंग से छोड़कर उनको क्या करने लगा कि वो फूड को चखने लगा, ठीक है, फूड को चखने लगा। और अब देखो वो टेस्ट करेगा। एक तो पहले स्टोरी बोल कर उसने समय पूरा बर्बाद कर दी थी, अब की बार वो ऐसे कुछ काम करेगा, चखेगा और कुछ बताएगा, कैसे बना है उसके बारे में बताएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे कुछ मिसिंग है बेटा. So the barber left off serving the sultan to examine each dish separately. This took off half of an hour. सारे जो जितने भी बने हुए थे डिशेस उसको अलग अलग चख कर उसके बारे में बताने के लिए, और वो आधा घंटा ले गया. The sultan stamped his feet impatiently, but the barber did not hurry. राजा तो एकदम तंग आ चुके थे बार्बर के ये बर्ताव से. उन्होंने अपने पैर मारा. ठीक है, पैर मारना मतलब जब हम किसी के ऊपर ज़्यादा गुस्सा आ जाते हैं या जब नाराज़ हो जाते हैं तो हम अपने हाथ पैर को इससे पटकते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड इज स्टैम्प्ड द फीट. बट द बार्बर डिड नॉट हरी. लेकिन बार्बर नाई तो एकदम आराम से था, उसके ऊपर कोई परेशानी ही नहीं थी. एट लेंथ however he again took up the razor, but after a few minutes of work stopped suddenly and cried. फिर क्या हुआ, उसने रेजर अपने हाथ में ले लिया. थोड़ी मिनट्स में उसने काम किया कि नहीं, फिर सडनली रुक गया. एंड क्राइड, फिर बोलने लगा, चिल्लाने लगा. आई नेवर न्यू दैट यू आर सो जेनरस. मैं कभी उम्मीद ही नहीं कर पाता था कि आप इतने उदार हो, आप इतने दयालु हो. ठीक है, राजा को बोलने लगा. सो दिस इज़ द स्टोरी of talkative barber from the Arabian Nights. Hope this story is so much enjoyable to you. In this class we are also going to share the question answers to you. Thank you very much for watching.